Hello, dear friends. Welcome to our channel Dhakar Brains. Dear friends, today we are going to cover a new poem that is Fog from NCERT 10th class first flight book. Dear friends, this poem is very short and to the point, and the poet of this poem is Carl Sandburg. And Carl Sandburg has written this poem very beautifully, and he described the process of arriving of fog into a city, and very beautifully he compared this fog fog with a cat. Okay, let us see. So he's comparing the fog with the cat. Now let's read the poem and let us understand. The fog comes on little cat feet. The fog comes like cat. The fog comes like cat on little feet, because how the cat walk on the tiptoe. You know very well what is tiptoe. दबे पाँव होता है, ठीक है, बिल्ली. How the cat comes like the same, fog also comes, and we don't know, or we are not aware about the arrival or the process of the fog. It sits looking over harbor and city. It sits, ये कहाँ बैठता है? लुकिंग ओवर हार्बर, एक बैठता है और देखता है किसकी तरफ? हार्बर, जहाँ पर जहाज वगैरह रुकते हैं, पोर्ट इसको हम बोलते हैं, हार्बर, एंड सिटी, शहर में, ठीक है. सो इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट haunches. Okay, on silent haunches means, that like you have seen a dog and cat sitting on its feet. Suppose a cat is sitting here like this in this pose. Okay, so it means that the cat is sitting on its haunches. Okay, then moves on. After this, what happens? It sits sometime for some time. It sits in the city, and there afterwards it moves on. So we can see that the cat is just the cat comes for some time and just moves on to other some place. Or you can say like this: the fog is also come in the same way. It comes silently, secretly, okay, and it sits there on its haunches like the cat, and then it moves on. So you can see this kind of fog, this way the fog comes. Yes, this is the way the cat sits ऑन इट्स हॉन्चेस. इस तरीके से जो कैट होती है, डॉग होते हैं, वो अपने हॉन्चेस पे बैठते हैं, ठीक है. हॉर्न्स मीन्स द बैक पार्ट, दिस इज कॉल्ड हॉन्चेस. ओके, मीन्स बम्प. ओके, सो इट मूव्स साइलेंटली. यू कैन सी लाइक दिस, द fog is moving somewhere in the air, and just it sits some time and just look over the city, just observe the city, you can say, just like the cat, and then just it moves on to next step or some other place it goes. So if we see the theme of this poem, we can very easily understand that कि जो फोक का जो नेचर है यहाँ पे उसको दिखाया गया है उसकी थीम में, और इसका जो इफेक्ट है हमारे सेंस ऑर्गन्स पे, ठीक है, उसकी मेन सेंट्रल थीम बोल सकते हैं. बिकॉज ड्यू टू द फॉग वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली, वी आर नॉट एबल टू लुक और सी अराउंड अस, ठीक है, हम देख नहीं सकते ठीक से. बिकॉज जब फोग आता है, कोहरा आता है, तो हमारे आसपास चारों तरफ सन्नाटा पड़ जाता है. एंड अकॉर्डिंग टू दिस पोम, द वंस ऑफ लुकिंग इज लिंक टू द अपीयरेंस ऑफ अ सिल्की ग्रेव. जब यहाँ पर जो फॉग है, इसकी जो अपीयरेंस है बताया गया, सिल्की ग्रेव ब्लैंकेट की तरह बताया गया. ब्लैंकेट वेरिएबल कंबल की तरह, जो पूरे सिटी को कवर करता है. और ये क्या करता है कि ये जब कोहरा होता है ना, तो एक मफल्स यहाँ पे साउंड्स होता है, वो प्रोड्यूस होते हैं, तो सेंसेशन ऑफ अ काम एंड साइलेंस. मतलब एक सन्नाटा, एक बोलते हैं ना, सन्नाटे की जो आवाज़ होती है, वो यहाँ पे एक शांति और काम, साइलेंस को प्रोड्यूस करती है, ठीक है. उसका सेंसेशन हमें यहाँ पे प्रतीत होता है. बिकॉज जब कोहरा होगा तो बिल्कुल सारे काम धंधे बंद हो जाएंगे, जब घना कोहरा होता है, ठीक है. डेंस फॉग इज देयर, so definitely all the work will be stopped. Now the poem addresses the notion that fog has the power to change the familiar into foreign. मतलब आप सोचिए फॉग में कितनी पावर है कि जो हमारे फैमिलियर है वो भी क्या फॉरेन हो जाते हैं. मतलब मीन्स वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई. जो हमारे लिए जो जान पहचान वाले होते हैं, फैमिली होते हैं, वो भी हमारे लिए फॉरेन हो जाते हैं. दैट मीन्स दैट वी आर नॉट एबल टू सी द प्रॉपरली, ओके, अराउंड अस, एंड हाइड द वर्ल्ड्स रियलिटी. ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, अब दुनिया की रियलिटी को हाइड कर लेता है कोहरा, मतलब दुनिया की जो वास्तविकता है उसको छिपा देता है, ठीक है. इतनी पावर है. वी कैन से द पावर ऑफ नेचर इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड हियर ना. मतलब नेचर की जो पावर, आप देखिए कि जो इंसानों ने जो बनाया उस सबको कवर कर लिया, सबको छिपा दिया, और अपनी जो नेचर की जो पावर है कि नेचर अपनी सुंदरता को दिखा रहा है, ठीक है, ना कि आपके रियल इस कॉन्क्रीट वर्ल्ड को दिखा रहा है, इस लग्जरी लाइफ को. ये कॉन्क्रीट वर्ल्ड बोल सकते हो, या फिर आप इसको हम व्हाट इज कॉल्ड दैट
मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को मतलब वो कवर कर देता है, इसको दिखाता नहीं है। नेचर इस सब चीज़ को छुपा देती है, क्योंकि नेचर इज द अल्टीमेट पावर वी कैन से इन दिस यूनिवर्स। सो द पोम एम्फेसाइज ऑन हाउ नेचर में चेंजेस, मतलब नेचर हमें कैसे चेंज कर देती है, नेचर हमें चेंज होने पर मजबूर भी कर सकती है। वी हैव सीन ऑलरेडी ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक कोविड-19, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि नेचर हमें कितना मजबूर किया चेंज होने के लिए, ठीक है। एंड इट अफेक्ट्स आवर सेंसेस एंड इमोशंस, डेफिनेटली नेचर हमें मजबूर करती है बदलने के लिए, बिकॉज इट्स अ चेंज इज द रूल ऑफ नेचर। मतलब परिवर्तन जो प्रकृति का नियम है, डेफिनेटली इट्स वेरी ट्रू। एंड इट अफेक्ट्स आर सेंसेस, हमारे सेंस ऑर्गन्स को, सबको, हमारी सोच को बदल देती है एंड अफेक्ट करती है, प्लस हमारे इमोशंस को भी अफेक्ट करती है। सो वेरी नाइसली द पोम हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड हियर एंड वेरी इंपॉर्टेंट पोम। वी नीड टू अंडरस्टैंड द डीप मीनिंग ऑफ दिस पोम, दो द पोम इज़ वेरी शॉर्ट एंड सिंपल, बट इट हैज़ very deep meaning, you can say. Now there are some these words are there like fog. What's the definition of fog? Is very clear. It's a thick cloud of tiny water droplets present in the atmosphere, especially in winter, so you know very well. हार्बर इज वॉट, इट्स पोर्ट और डॉक वी कैन से, जहाँ पर जहाज़ खड़े होते हैं, ठीक है, वहाँ पर घना कोहरा होता है एकदम सन। एक्चुअली यू नो दैट वेरी वेल दैट कि जब नॉर्मल डेज में क्या होता है, हार्बर पर बहुत जहाज़ आ रहे हैं, मतलब बहुत सारा मतलब भीड़ क्राउड रहेगा, सामान ना लोडिंग हो रही है, अपलोडिंग हो रही है ना, सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर बीइंग डन। एंड ऑन हॉन्चेस यू नो दैट सिटिंग विद नीज बेंट, है ना, जब नीज बेंड करके हम घुटनों पे बेंड करके नीचे बैठते हैं, उसको हॉन्चेस बोलते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पोम। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।